Okay, ji, Bismillahirrahmanirrahim. Just a recap what we had already done in the last week, rather the active last week. Okay, so we started root locus for feedback systems, and we said that a root locus uh, is actually a path traced by the roots of the characteristic polynomial. इसका मतलब है closed loop जो आपके poles होंगे उनका जो path है on the S plane, that is in fact the root locus, officially called root locus of a feedback system. And that is of course ये जो रास्ता है, ये जो path है, ये change होता है by changing the parameter which is in fact the forward path gain. जो कंट्रोल सिस्टम डिजाइंस में आपको इस चीज की जरूरत जो है वो पड़ती है. So this is your closed loop transfer function for this system where k is the controller gain, g of s is the प्लांट ट्रांसफर फंक्शन, एच एफ एस जो है आपका फीडबैक की ट्रांसमिटेंस है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट योर ट्रांसफर फंक्शन इज के जी एस ओवर 1 प्लस के जी एस एच एफ एस, एंड दिस thing is your characteristic polynomial. And every transfer function you know that can be given as the ratio of the numerator polynomial and the denominator polynomial. And then we define the open loop transfer function. If we break this um, line, the feedback line here, in that case the transfer function will be y1 of s divided by r of s, and that is kg of s h of s, and of course that would be the ratio of the polynomials as well. But I would like कि ये इनका हम इसको n1 of s over d1 of s कर लें, so that कि आपको confusion ना हो कि ये same numerator or denominator. And then we defined open loop zeros and open loop poles. Of course the zeros and poles associated with the open loop transfer function जो हैं वो आपके open loop zeros and poles हैं, and the closed loop poles and zeros which are associated with the transfer function जो आपका closed loop transfer function है, those would be the open closed loop transfer poles and zeros of the system. And then we started with our polynomial, characteristic polynomial, and the characteristic equation. And of course, the poles obtained from this polynomial will be the closed loop poles. And when we can write this equation in this form as well, and as it's a complex quantity, because of this s is a complex variable, so any complex number can be written in terms of its magnitude and phase. So we said that any value of s that is a closed loop pole must satisfy the magnitude and angle criteria. What is the magnitude criteria? That is shown here. What is the phase criteria? That is shown here, that the phase of this quantity, phase of k plus g of s plus h of s. So all the phases, when you will be adding it, that should be the multiple of odd multiples of 180 degree. So, and then we said that this is our open loop transfer function kg of s h of s, and that can be shown as this ratio of the polynomials where which has got m zeros and n poles, and the root locus actually will be having n branches, because we are talking about the closed loop poles, और हमारे पास इस system के अंदर n closed loop poles हैं, तो that's why we will be having n branches. अच्छा, इन n branches में से जो m zeros क्योंकि मौजूद हैं, तो as k will be moving from 0 to infinity, so the n branches will be terminating on the m zeros when k will be at infinity, and the remaining n minus m जो आपकी branches हैं, that would be going to infinity along the asymptotes. In the meantime, if you have any question, you can ask it. And then we started the root locus construction with this example, and we started different rules of constructing root locus with this example. So we started this example g of s h of s. Why shouldn't we write it k g of s h of s? So in that case, it has n is equal to 2 and m is equal to 0, and we can write this as 1 plus k s plus 4 s minus 1, and further we can modify this thing as this form. And when k tends to 0,
we have our characteristic polynomial in this form, and it is showing that all the poles हैं हमारे वो हमारे open loop poles में convert हो गए हैं, which are -4 and +1, because that was my open loop transfer function. ठीक होगी बात? Any questions regarding that? Irfan? Okay. एंड देन वी सेड ओके जी हमारे पास दो पोल्स हैं, -4 पे पड़ा हुआ है, एक +1 पे पड़ा हुआ है, रियल एक्सिस पे हमारे पास ये ओपन लूप पोल्स हैं, एंड वी आर सीइंग द केसेस व्हेन k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. रादर इक्वल टू 0 इज नॉट अ राइट थिंग, बिकॉज इक्वल टू 0 पे आपके पास ओपन लूप पोल्स हैं, और फिर जैसे ही 0+ पे आप पहुंचते हैं तो ये ट्रैक जो है, ये लोकस जो है, ये क्लोज लूप पोल का वो स्टार्ट हो जाता है. सो Nangyal, why we will be opting this green line and not this blue line? सर क्योंकि ब्लू लाइन वो उस वहाँ पे सर इमेजिनरी पोल्स है, और हमारे बिकॉज हमारे पास सिंगल पोल रखा हुआ है और हम इमेजिनरी एक्सिस पे अगर हम जाते हैं तो इस बात का मतलब है कि हमारे पास जो कोएफिशिएंट्स होंगे हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन के वो रियल नहीं रहेंगे. सो दैट्स व्हाई वी विल नॉट बी ऑप्टिंग दिस पाथ. ठीक है, ये ब्लू लाइन जो है फॉर बोथ केसेस हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में नहीं जाएंगे, हम रियल एक्सिस पे ही मौजूद रहेंगे फॉर दीज पोल्स. ग्रेट. अच्छा, व्हाई नॉट दिस साइड? इस साइड पे क्यों नहीं जा रहे और ग्रीन साइड पे क्यों जा रहे हैं? व्हाट वाज दैट? एंगल क्राइटेरियन मीट नहीं होगा सर. बिकॉज एंगल क्राइटेरियन जो है इस साइड पे भी मीट नहीं होगा, और अगर हम इस साइड पे जाना चाहें तो भी मीट नहीं होगा. ग्रेट, जबरदस्त. सो वी विल चेक विद द एंगल क्राइटेरियन एंड वी विल बी डिसाइडिंग कि हमारा रूट लोकस जो है उसकी मूवमेंट जो है वो क्या है. ओके, देन वी सेट कि रियल एक्सिस पे कहाँ पे हमारे पास हैं. तो इसके लिए हमने क्या किया था, हमने कहा कि हम रीजन्स जो है वो डिफाइन कर लेते हैं. इस बात का मतलब ये है कि आपने कहा मेरे पास -4 और -1 पे अगर आपके पास पोल्स पड़े हुए हैं तो आपने ये किया कि टेस्ट पॉइंट्स लिए ST1, ST2, ST3, और इसका मतलब है कि -∞ और -4 एक जोन है, एक रीजन है, उसके दरमियान में आपने एक टेस्ट पॉइंट रखा. फिर आपने दूसरा जोन जो है वो -4 और 1 के दरमियान है, यहाँ पे एक टेस्ट पॉइंट रखा. एंड ऑफ कोर्स देयर इज अनदर रीजन विच इज 1 to infinity, और इस यहाँ पे आपने एक टेस्ट पॉइंट रखा, और फिर उसके बाद हर उसके ऊपर आपने एंगल क्राइटेरियन जो है वो देखा, एंड यू हैव डिसाइडेड कि फाइनली आपके पास -4 और 1 वाला जो है रीजन जो है ये एग्जिस्ट करता है रूट लोकस में, और बाकी दोनों जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते. सिमिलरली वी डिड अनदर एग्जांपल एज वेल. इस केस में आपके पास एक 0 जो है वो -1 पे रखा हुआ था. सो इन दिस केस n was equal to 2, m was equal to 1. तो एक ब्रांच जो है वो तो 0 पे टर्मिनेट हो जाएगी, और दूसरी ब्रांच जो है उसने इन्फिनिटी पे जाना है. सो उसके लिए हमने चेक किया, तो यहाँ पे हमने टेस्ट पॉइंट्स के लिए 4 जोन्स हमारे पास हो गए. पहला जोन -∞ to -4, दूसरा जोन -4 to -1 दिस 0, अगला जोन जो है वो -1 और +1 के दरमियान, एंड फाइनल जोन है +1 और इन्फिनिटी के दरमियान. और यहाँ पे हमने अपने टेस्ट पॉइंट रखे, हमने अपने एंगल क्राइटेरियन को चेक किया. सो वी डिसाइडेड कि इनफैक्ट वी फाउंड आउट कि हमारे पास जो रूट लोकस है रियल एक्सिस पे वो +1 से स्टार्ट होके -1 पे टर्मिनेट हो रहा है, एंड द सेकेंड पार्ट जो सेगमेंट है रूट लोकस का वो -4 से स्टार्ट होता है और वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है. एंड इन दिस केस एसिम्प्टोट जो है वो अलोंग दिस 180 डिग्री पे मौजूद है. ओके, देन वी डिसाइडेड अबाउट के हमारे पास एसिम्प्टोट्स अगर हैं तो एसिम्प्टोट्स का एंगल क्या है, एंड वी एंडेड अप के दिस एंगल इज इन फैक्ट थीटा इज इक्वल टू 180 ± 360i या 2πi डिवाइडेड बाय n - m. एंड इन फैक्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एसिम्प्टोट सिर्फ उस वक्त होंगे जिस वक्त हमारे पास आपके पास n इज इक्वल टू m नहीं है, यानी m लेसर देन n है, उसी केस में ही आपके पास एसिम्प्टोट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगे. अदरवाइज एसिम्प्टोट नहीं होंगे, बिकॉज जो रूट लोकस है आपका वो n, क्योंकि उसके अंदर ब्रांचेस हैं तो वो n ब्रांचेस जो हैं वो m जीरोस के ऊपर टर्मिनेट हो रही होंगी, एंड वी विल नॉट बी हैविंग एनी asymptotes in that case.
So this is the situation for the angle of the asymptotes. And then centroid of the asymptote कहाँ है कि asymptote real axis पे कहाँ पे बैठा हुआ है, तो वो आपके पास था, that is poles of the open loop poles minus open loop zeros divided by n minus m. and इसी केस में अगर हम देखें तो आपके पास क्योंकि दो पोल्स थे, एक पोल -4 पे था, we are talking about this thing. सो सिग्मा जो है इनफैक्ट रियल एक्सिस पे यू हैव कंक्लूडेड कि क्या सिचुएशन डेवलप होगी, -4 +1, दीज आर द ओपन लूप पोल्स, माइनस ओपन लूप 0 कोई नहीं है, डिवाइड बाय n minus m which is 2. सो यू हैव एंडेड अप कि आपका जो असिम्प्टोट है दैट इज मीटिंग योर real axis at sigma is equal to -1.5. जी जनाब, any questions? Because and we did this example as well कि किस तरह से आप अपने asymptotes जो है वो फाइंड आउट करते हैं. इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो हमारे पास 3 ओपन लूप पोल्स हैं और एक जो है वो आपके पास 0 है. सो n इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू 1 एंड इसका मतलब ये है कि एक पोल से तो 0 की तरफ टर्मिनेट करेगा आपका रूट लोकस और बाकी जो हैं दो असिम्प्टोटिक बिहेवियर शो कर रहे होंगे. सो इन दैट केस आपने इसको चेक किया कि आपका असिम्प्टोट है क्या, बिकॉज दैट वुड बी दो असिम्प्टोट्स हैं आपके. अब एंगल जो है वो +90 और -90 है और उसका जो कट कर रहा है वो -3 -0 डिवाइड बाय 2 दैट इज -1.5. सो ये बिहेवियर है +∞ और -∞ की तरफ इन पोल से जा रहा है और दूसरा जो है आपका लोकाई जो है दैट इज टर्मिनेटिंग ऑन दिस 0. एनी क्वेश्चंस? Okay, let's start our so now we are moving towards the next rule for constructing our root locus, and that is the breakaway or break in or entry points on the real axis. Okay, so what is a breakaway point? Breakaway point will exist on the root locus between two consecutive open loop poles on the real axis with no real open loop zeros between them. और अगर मैं ब्रेक इन पॉइंट के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो दैट वुड बी एग्जिस्टिंग ऑन द रूट लोकस बिटवीन टू कंसेक्टिव ओपन लूप जीरोस ऑन द रियल एक्सिस विद नो रियल ओपन लूप पोल्स बिटवीन देम. सपोज हमारी एग्जांपल जो है उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास क्या सिचुएशन है. So this is हमारे पोल्स कहाँ पे पड़े हुए हैं, -4 पे है और 1 पे. And we have said that a breakaway point will exist on the root locus between two consecutive open loop poles on the real axis with no real open loop zero between them. So यहाँ पे एक breakaway point जो है वो होना चाहिए as per definition. ठीक है. So we have two open loop poles on the real axis at s is equal to -4 and s is equal to 1, and there is no open loop 0 between them. So as k tends to 0, our root locus is at -4 and 1. As k starts increasing, एक ब्रांच जो है वो स्टार्ट करती है आपकी -4 से और दूसरी ब्रांच आपकी स्टार्ट करती है -1 से. सो दिस इज द सिचुएशन. ठीक है. सो एक राइट की तरफ आ रही है, एक लेफ्ट की तरफ आ रही है. एज k keeps on increasing from 0, both the branches will extend towards left and right, and at some point they are going to meet each other, and at that meeting point they will break away from the real axis. So ये चलता हुआ आ रहा है, ये चलता हुआ आ रहा है, एक जगह ऐसी आनी है जहाँ पे इन्होंने मिलना है
और फिर उसके बाद इन्होंने ब्रेक करना है। इस केस में ये ब्रेक कर सकते हैं बिकॉज दो पोल्स हैं, तो ये इमेजिनरी एक्सिस पे जाएंगे तो ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर जो है वो बना रहे होंगे। सो ये हमारा जो है, इसको हम अपना ब्रेक अवे पॉइंट कहते हैं। एग्रीड? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन बेटा? No, sir. सर जी जी बोले प्लीज। ये ब्रेक करने से क्या मतलब है सर? ये बेटा यहाँ से दो आ रहे हैं ना, आपका पोल्स आ रहे हैं ना, यहाँ से इधर से पोल आ रहा है, इधर से पोल आ रहा है। इनफैक्ट ये पोल का रास्ता है, ये पोल का ब्लू लाइन जो है ये पोल का रास्ता है। जैसे जैसे के की वैल्यू चेंज हो रही है, पोल्स जो हैं वो अपनी वैल्यू जगह जो है वो चेंज कर रहे हैं। सो एक देयर विल बी सर्टेन वैल्यू ऑफ के विच विल बी द मैक्सिमम विच इज शोन हियर। जो रियल एक्सिस पे वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, उस पे आपका ये स्प्लिट कर जाएगा। ये पोल जो है ये ऊपर निकल जाएगा और ये एक नीचे आ जाएगा, बिकॉज लोकस जो है वो एक दूसरे को क्रॉस, पोल्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। पोल वापस भी नहीं आएगा और क्रॉस भी नहीं करेगा। ठीक है, जैसे जैसे के की वैल्यू बढ़ रही होगी। हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? यस सर। ओके, अच्छा इसी तरह से अगर मेरे पास जीरोस होते, ब्रेक इन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, सो सपोज करते हैं मेरे पास एक जीरो जो है वो -6 पे रखा हुआ है और एक जीरो जो है वो -3 पे रखा हुआ है, और इसमें कोई ओपन लूप पोल जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो रियल एक्सिस की बात हो रही है। देयर मे बी अदर ओपन लूप पोल्स एंड ओपन लूप जीरोस, बट हम सिर्फ बात कर रहे हैं रियल एक्सिस के ओपन लूप पोल्स की या जीरोस की। सो क्या होगा इस सिचुएशन में? अगर k इज इक्वल टू 0 पे वी आर एट सर्टेन पोल पे हैं, और जैसे जैसे k बढ़ता चला जाएगा तो वी विल बी मूविंग towards this 0. So from our previous knowledge of root locus rule, that root locus will approach to open loop zeros as k is equal to infinity. So क्या हो रहा है? Ultimately k is equal to infinity पे इन zeros की तरफ आ रहा है आपका root locus जो है। ठीक है, suppose for some case the branch comes in and terminates to 0 at -6, and the other branch is terminating at -3, which is the other 0 at k is equal to infinity. So जैसे जैसे k की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी आप पीछे चलते जाएंगे। ठीक, एंड देयर विल बी सर्टेन वैल्यू ऑफ k जहां पे ये पीछे से आ रहा होगा, एंड ये डायरेक्शन होगी इसकी, यानी पीछे किसी पोल से ये आ रहे थे, ये इस पॉइंट पे ब्रेक इन पॉइंट पे आके मिले हैं, और उसके बाद जैसे ही के इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है ये इस जीरो को मिल रहे हैं। सो दिस इज अवर ब्रेक इन पॉइंट। एनी कंफ्यूजन्स अबाउट ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट या एंट्री पॉइंट्स? जी इरफान, नंग्याल, इब्राहिम, मोहम्मद अली। No, sir, no questions. ओके, सो इरफान ये बताइए कि व्हाई वी आर सेइंग दैट के की वैल्यू मैक्सिमम होगी ब्रेक अवे पॉइंट पे। व्हाट्स द रीजन? Sir, नहीं पता। जी नंग्याल। सर क्योंकि वो अपने पॉइंट से दूर
चले जा रहे हैं, इसलिए जैसे के की वैल्यू ज्यादा होती जा रही है। के की वैल्यू जैसे ज्यादा होती जा रही है। गुड। ये देखिए यहाँ पे के जो है दैट इज इन फैक्ट अप्रोचिंग जीरो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी के इज ऑलमोस्ट जीरो। लेकिन जैसे जैसे ये के की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक। एंड देयर विल बी सर्टेन पॉइंट जहां पे के की वैल्यू मैक्सिमम होगी ऑन दिस रियल एक्सिस। जिस पॉइंट पे के की मैक्सिमम वैल्यू होगी रियल एक्सिस पे, दैट वुड बी योर ब्रेक अवे पॉइंट। इसी तरह से ये किसी पोल से आ रहे हैं, आपके पास लोकस जो है वो आ रहा है। ठीक है, तो इस बात का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे के की वैल्यू मिनिमम होगी, सॉरी के की वैल्यू जो है क्या होनी चाहिए, के की वैल्यू जैसे बढ़ती चली जा रही है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, फिर के की वैल्यू जो है वो मिनिमम हो जाएगी, बिकॉज यू आर मूविंग टुवर्ड्स इंफिनिटी ब्रेक इन पॉइंट पे। एग्रीड? Yes, sir. अच्छा जी। नाउ अब किस तरह से हमने ब्रेक अवे पॉइंट और ब्रेक इन पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जरा थोड़ा सा इसको तवज्जो दीजिए। ब्रेक इन पॉइंट और ब्रेक अवे पॉइंट पे हो क्या रहा है? यहां से एक पोल चलता हुआ आ रहा है, यहां से एक पोल चलता हुआ आ रहा है। इस ब्रेक अवे पॉइंट पे क्या हो रहा है? या इधर से एक पोल चलता हुआ आ रहा है, इस यहाँ पे पोल चलता हो रहा है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो रहा है? ब्रेक इन पॉइंट पे क्या सिचुएशन है इन पोल्स की? मोहम्मद अली, इब्राहिम, कासिम, शहजाद, ब्रेक अवे पे पोल डाइवर्ज हो रहे हैं। ब्रेक अवे पे पोल्स डाइवर्ज हो रहे हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सिचुएशन क्या है? पोल्स क्या कर रहे हैं? यहाँ पे आपके पास इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहां से एक पोल आया, यहां से एक पोल आया। बिफोर डाइवर्जिंग व्हाट वाज द सिचुएशन? क्या हो गया यार, सो रहे हैं? सर दोनों पोल सेम पॉइंट पे आ गए। क्या कहते हैं इसको? फिर दिस इज कॉल्ड रिपीटिंग पोल्स। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे भी इसी तरह से होगा। जस्ट दे विल मर्ज एट दिस पॉइंट, ब्रेक इन पॉइंट पे, तो यहाँ पे आपके पास रिपीटिंग पोल्स मौजूद होंगे। सो वी विल बी एक्सप्लॉइटिंग दिस थिंग कि यहाँ पे ब्रेक इन पॉइंट पे या ब्रेक अवे पॉइंट पे हमारे पास रिपीटिंग पोल्स हैं। वी विल बी यूजिंग दिस टू गेट आवर ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट। ठीक है जी। अच्छा, if we have a polynomial with a repeating pole or a repeating root, there are certain characteristics associated with that. So अगर suppose करें मेरे पास एक polynomial है d1 of s, मैं इसको कह देता हूँ, and ये मेरा एक polynomial रखा हुआ है s plus 1 and s plus 2. What will be the derivative of this one? Sir, s plus 1 into derivative of s plus 2. ठीक है, वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना। And Plus 3 आंसर आएगा। This is plus Plus 3. s plus 2. सो इसमें कोई रिपीटिंग रूट जो है वो मौजूद नहीं था। -1 पे एक रूट है, -2 पे एक रूट था, और जब आपने इसका डेरिवेटिव लिया तो यू हैव ऑब्टेन दिस। और अगर आप इस डेरिवेटिव के अंदर रूट्स की वैल्यू डालें तो आपको पोलिनोमियल जो है वो आपका डेरिवेटिव ऑफ द पोलिनोमियल जो है वो 0 नहीं होता। लेकिन ज़रा
अगर आप इसको देखें, सपोज ये सिचुएशन है, एक पोलिनोमियल मैं लेता हूँ d2 of s which is s plus 1 square s plus 2। इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, -1 के ऊपर रिपीटिंग रूट्स जो हैं वो मौजूद हैं। -1 आपका रिपीटिंग रूट है, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं तो दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 2 s plus 1 s plus 2 plus s plus 1 square। नाउ दैट्स माय डेरिवेटिव, और इसमें मैं अपने रूट की वैल्यू डालूं s इज इक्वल टू -1 डालूं जो रिपीटिंग रूट है मेरा, तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, मेरा d2s जो है at s is equal to -1 that would be equal to 0। and in fact I will be using this thing कि आपका जो जहाँ पे रिपीटिंग रूट है वहाँ पे आपका डेरिवेटिव जो है that is equal to 0, we will be using this thing to get our break in or break away point। agreed? इसमें कोई कंफ्यूजन है कि क्या हो रहा है? Here we are convinced that at breakaway point and break-in points we have repeating roots or repeating poles, ठीक? And then we looked at the property of this repeating root polynomials, that what's happening कि repeating root अगर नहीं है तो आपका derivative जो है at any pole at any root is not equal to 0। but here we are saying that if we have a repeating root, in that case what's happening, if you take the derivative and you evaluate at that particular रिपीटिंग रूट की जो वैल्यू है उसके ऊपर अगर आप अपना डेरिवेटिव को कैलकुलेट करते हैं, दैट वुड बी इक्वल टू 0। वी विल बी एक्सप्लॉइटिंग दिस थिंग टू गेट अवर ब्रेक इन पॉइंट। एग्रीड? Yes, sir. Okay, so now we know that k g of s h of s, which is nothing but our open loop transfer function, we can write it as k a of s divided by b of s, just the polynomials, numerator polynomial और denominator polynomial open loop आपके transfer function का है, and we already know that we can write it in this form k and s plus z1 s plus z2 s plus zm, so it has got m zeros and s plus p1 s plus p2, and then we have got s plus pn, we have got n poles। और अगर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की बात करें, what it will be, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्लास में हूँ, बाद में बात कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, वो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन अगर मुझे लिखना हो तो क्या करूँ? फिर 1 ऐड कर देंगे। 1 ऐड कर देंगे, ग्रेट। सो my closed loop transfer function is 1 plus rather the characteristic equation will be what, 1 plus k as bs is equal to 0। अच्छा, अब अगर मेरे पास इस क्लोज लूप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में रिपीटिंग रूट्स हैं तो व्हाट कैन आई से अबाउट इट्स, पहले तो आप इसका डेरिवेटिव ले लें, ठीक है? सो मैं कह देता हूँ सपोज दिस इज माय क्लोज लूप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, पीसीएल इसका नाम मैं रख देता हूँ, और मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ, तो इन दैट केस व्हाट इट विल बी के u over v case, and that's equal to 0। इसका डेरिवेटिव लिया और उसको इक्वेट किया 0 के। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस?
सो गए? नो सर, कोई सवाल नहीं सर। ग्रेट। अच्छा जी, अब जरा देखिए तो इस इक्वेशन में k 0 हो सकता है? इनफैक्ट हाँ जी बोलें, ये इक्वेशन किस वक्त 0 हो सकती है? 3 सेगमेंट्स हैं, या तो k 0 है, या ये चीज, ये वाला पोर्शन जो है ये 0 है, या ये वाला पोर्शन इंफिनिटी है। दैट्स द ओनली 3 ऑप्शंस हैं जिनमें ये इक्वेशन 0 हो सकती है। k 0 हो सकता है? एनी वॉलंटियर? नो सर। क्यों नहीं हो सकता? सर इसलिए क्योंकि अगर k 0 होगा तो हमारा ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन ही सर एलिमिनेट हो जाएगा सर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ज्यादा लॉजिकल जवाब दें, ज्यादा लॉजिकल जवाब दें रूट लोकस के कॉन्टेक्स्ट में। सर 0 तो सर मतलब एट पोल्स एग्जिस्ट करेगा ना सर वो। ओपन लूप पे बैठा हुआ है ना इस वक्त, तो आप ब्रेक अवे ब्रेक इन पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो k की वैल्यू 0 कैसे हो सकती है? ठीक है, सो k की वैल्यू तो देयर मस्ट बी सम नॉन जीरो वैल्यू फॉर k। रिपीटिंग रूट्स की बात हो रही है, ठीक है? यस सर। ओके, अच्छा, क्या ये इंफिनिटी हो सकता है? बिकॉज दैट शुड बी एट s इज इक्वल टू इंफिनिटी। ये चीज इंफिनिटी उस वक्त होगी जब s इंफिनिटी पे होगा। अगेन ब्रेक इन पॉइंट और ब्रेक अवे पॉइंट पे आपका जो s है वो इंफिनिटी नहीं है, दैट हैज गॉट सम फाइनाइट वैल्यू। सो ये जो चीज है ये इंफिनिटी नहीं हो सकती, ये जो चीज है आपकी ये 0 नहीं हो सकती। तो इस बात का मतलब है देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी कि ये चीज जो है वो आपकी 0 है। एग्रीड? यस सर। ठीक, सो अल्टीमेटली वी से कि हमारे पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, दैट आवर ये जो डेरिवेटिव आपने लिया था उसका ये वाला सेगमेंट जो है दैट इज इक्वल टू 0। सो व्हाट वी डू, वी सॉल्व दिस इक्वेशन and the roots of this equation are potential breakaway points. Why potential? Because we will be checking this thing कि ये जो चीज आपने, ये जो रूट्स आपने फाइंड किए हैं, अगर तो इन रूट्स के लिए k की वैल्यू पॉजिटिव है, बिकॉज वी हैव, जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि हम ये केसेस देख रहे हैं, रादर के 0 प्लस से लेके इंफिनिटी तक जो है ये सिचुएशन हम देख रहे हैं। सो k इज ग्रेटर देन 0 की बात हो रही थी। सो अगर तो k पॉजिटिव है देन इन दिस पर्टिकुलर केस हमारे पास जो हमारे रूट्स हैं वो ट्रू हमारे ब्रेक इन पॉइंट या ब्रेक अवे पॉइंट्स जो हैं वो होंगे, ठीक है? सो वी विल बी सॉल्विंग दिस एंड देन वी विल बी फाइंडिंग आउट कि k इज इक्वल टू, यानी रूट्स आप फाइंड आउट कर लेंगे और फिर उसके बाद आप देखेंगे k इज इक्वल टू माइनस बी ऑफ एस डिवाइडेड बाय a ऑफ s, और एट s इज इक्वल टू सम जो भी रूट आपने सपोज ब्रेक अवे पॉइंट पे आपने फाइंड आउट किया है, इफ दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इन दैट केस sb विल बी योर agreed? यस सर। Any questions? ओके, अब हम अपनी एग्जांपल के आ जाते हैं केस में। हमारे पास क्या था? सर जी बोल, जी बोल।
सर क्वेश्चन है लेकिन लास्ट स्लाइड से सर आपने कहा था कि के 0 नहीं हो सकता और नीचे जो डिनोमिनेटर में बी एन टू एस था सर वो भी आपने कहा कि इन्फिनिटी नहीं हो सकता उसका रीजन तो सर बता दे। बेटा के कैसे जीरो हो सकता है, आप खुद बताइए। के जीरो का मतलब तो ये है कि आप इधर बैठे हुए हैं, अगर फर्ज किया मेरे ये पोल्स हैं, के जीरो का क्या मतलब है? कि बोल दे, साथ बोले जो ना, हमारे बोलते पास जाना। कि हमारे पास जो पोल्स है फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हमने एग्जांपल में -4 वहां पे लिया था तो वहां पे के 0 हो सकता है। जी जैसे वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो वो नहीं नहीं ज्यादा बेटा, क्लियर। क्या हो गया के जीरो के ऊपर कहाँ पे है पोल? मेरा क्वेश्चन तो सुन लेना। के यस जीरो के ऊपर कहाँ पे पोल्स हैं? सर -4 भी नहीं। -4 पे है और 1 पे है। हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? हम तो ब्रेक अवे या ब्रेक इन पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो ब्रेक अवे पॉइंट कब आएगा? जब यहां से पोल चलता हुआ आ रहा है, यहां से पोल चलता हुआ आ रहा है, किसी जगह पे मिले हैं, ये मेरा ब्रेक अवे पॉइंट हो जाएगा। तो इस जगह पे क्या के की वैल्यू 0 हो सकती है? नो तो ये एक वजह हो गई। गॉट इट? यस ओके। अब इसको देखो, बीएफएस जो है, बीएफएस क्या है? आपका डिनोमिनेटर है आपके पोलिनोमियल का जिसमें पोल्स पड़े हुए हैं। यस ठीक, तो किस वक्त ये आपका इन्फिनिटी होगा? क्या ये इन्फिनिटी हो सकता है? एस की वैल्यू इन्फिनिटी हो सकती है? इस जगह पे एस की वैल्यू इन्फिनिटी है? नो इस पर्टिकुलर जगह पे एस जो है वो इन्फिनिटी के इक्वल है? बोलो सर ये यार। जब इससे सर जब दूर चले जाएगा तो तब ये 0 बेटा इस जगह पे इन्फिनिटी। एस इज इक्वल टू इन्फिनिटी तो नहीं हो सकती ना। यस ब्रेक ये इन या यहाँ ब्रेक पे अवे पॉइंट पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता एस इन्फिनिटी हो जाए। यस एग्रीड? यस कन्विंस हो जाओ। इस पर्टिकुलर यस जगह ऐसे पे ही किसी भी जगह पे रखो तो यहाँ पे ना के जीरो हो सकता है इस पर्टिकुलर जगह पे, ना एस इन्फिनिटी हो सकता है इस पर्टिकुलर जगह पे, चाहे ब्रेक इन यस पॉइंट हो चाहे ब्रेक अवे पॉइंट हो। सो दैट्स द रीजन वी आर सेइंग कि हम यहाँ पे के जीरो नहीं हो सकता, ये इन्फिनिटी नहीं हो सकता, लेकिन ये जो आपका क्लोज लूप पोलिनोमियल है, दैट इज इक्वल टू जीरो बिकॉज वी हैव टेकन दिस क्लोज लूप पोलिनोमियल, और इनफैक्ट दैट्स द डेरिवेटिव ऑफ दिस बिकॉज क्लोज लूप पोलिनोमियल तो आपका ये था। सो इसको जब इक्वेट करते हैं, सो देर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी कि ये चीज इक्वल टू जीरो है। यस सर यस हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? यस सर यस ओके ग्रेट। यहाँ ये चीज क्लियर है? So the roots of this यस equation are the potential breakaway or break-in points. Why we are saying potential? Because we have to check that for these particular values जो के roots जो आपने solution आपने find out किए हैं, if for these values if k is positive, then you will be saying that it is a breakaway point, because again the answer is there because at this particular point k will be having positive value for the case we are considering. ठीक है? यस Okay. चलिए, सो हम अपनी पर्टिकुलर एग्जांपल के अगर केस में बात करें तो व्हाट इट वाज के जी एफ एस एच एफ एस एंड दैट वाज इक्वल टू के डिवाइडेड बाय एस प्लस 4 एंड एस माइनस 1. ओके, सो व्हाट इज ए एफ एस? ए एफ एस इज 1. और अगर हम बी एफ एस की बात, अगर कोई जाग रहा है तो बता दे। यस सर अब आपकी आवाज आ रही है। Sir, A dash of S 0. B dash एंड of बी S बात S plus जी 4 plus S minus 1. जी, so in fact that is s square, sorry,
दैट वुड बी ज्यादा सिंप्लीफाई कर देते हैं, दैट इज 2s plus 3 because that thing was s square plus 3s minus 4, तो इसका डेरिवेटिव जो है वो ये हो जाएगा। ठीक है, ओके जी। सो व्हाट वी हैव टू डू, ब्रेक अवे पॉइंट हमारा क्या निकल रहा है? So what we will be doing, we will be doing a bar of s p of s minus p bar of s a of s, that would be equal to 0. So ultimately that is minus 2s plus 3 is equal to 0, and as a result of that s is equal to minus 3 by 2. Agreed? This is Yes. your ब्रेक इन और ब्रेक अवे, जो भी अभी इसके बारे में डिस्कस करते हैं, व्हाई ब्रेक इन और ब्रेक अवे पॉइंट, बट वी आर नॉट डन येट बिकॉज दिस इज अ पोटेंशियल ब्रेक इन और ब्रेक अवे पॉइंट। ठीक है, सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें चेक करना होगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या k की वैल्यू पॉजिटिव है, एंड व्हाट वी सेड दैट k विल बी इक्वल टू minus b of s divided by a of s, so it will be minus s square plus 3s minus 4 divided by 1 at s is equal to minus 3 by 2। ये कैलकुलेट करके आप देखें तो दैट इज इन फैक्ट इक्वल टू 6.25। ठीक, सो इस बात का मतलब ये है कि आपके पास s इज इक्वल टू minus 3/2 is the actual अब मुझे नहीं पता कि ये ब्रेक इन पॉइंट है या ब्रेक अवे पॉइंट है, एनी आइडिया? आप लोग क्या कहते हैं? ये सिचुएशन है सर ग्रेटर देन 0 है तो ब्रेक अवे होगा सर, और अगर लेस होता तो ब्रेक इन होता। जी सर शायद ऐसे ही है। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, दोबारा गौर से देखें। -4 पे आपका एक पोल पड़ा हुआ है, एक 1 पे पोल पड़ा हुआ है, एंड वी आर सेइंग कि ये एक पॉइंट हमें मिला है -1.5 का, और इसके बारे में फैसला करना है कि क्या ये ब्रेक इन पॉइंट है या ब्रेक अवे पॉइंट है। अगर मेरा ख्याल है पिछले 1.5 हफ्ते से 2 हफ्तों से हम यही चीज डिस्कस कर रहे हैं। देखिए k इज इक्वल टू 0 पे आप यहाँ बैठे हुए थे, फिर k बढ़ना शुरू हुआ, k की वैल्यू बढ़ना शुरू हुई, आप इस तरफ मूव करना शुरू हो गए, k की वैल्यू बढ़ना शुरू हो गई, आप इस तरफ मूव करना शुरू हो गए। दिस इज अ ब्रेक, कोई एक पॉइंट है जहां पे फॉर सम वैल्यू ऑफ k आप यहाँ पे पहुंच गए। अब क्या होगा, क्या ये ब्रेक इन होगा या ब्रेक अवे होगा? सर ब्रेक अवे होगा क्योंकि रियल एक्सिस पे हमारे पोल्स हैं। गुड गुड, तो इसका मतलब ये है कि दिस इज योर ब्रेक अवे। एग्रीड, नॉट ब्रेक इन। ठीक होगी बात? यस सर। ओके, अब फाइनली एक चीज है हमारे पास, दैट एंगल ऑफ डिपार्चर या एंगल ऑफ अराइवल जो है वो क्या है। ठीक, सो इस बात का मतलब ये है कि अब आपने ब्रेक इन पॉइंट और ब्रेक अवे पॉइंट के बाद फाइनल जो चीज आपने देखना है, दैट इज एंगल ऑफ डिपार्चर एंड एंगल ऑफ अप्रोच। व्हाट इज एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अप्रोच? अगर आप सपोज करें आपके पास कॉम्प्लेक्स पोल्स हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर ऑफ पोल्स हैं, क्या होता है एट k इज इक्वल टू 0 प्लस 0 पे ये पोल्स हैं, ओपन लूप पोल्स पड़े हुए हैं, और फिर उसके बाद k जैसे जैसे बढ़ना शुरू होता है तो पोल्स यहाँ से बाहर निकलता है, और k इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे या तो वो m जीरोस पे टर्मिनेट कर जाएगा, और अगर n इज इक्वल टू m नहीं है तो इन दैट केस अलोंग सम एसिम्प्टोट वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा। इसी तरह से है ना? यस सर।
अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि भैया ठीक है, ये तो हमें पता है कि भाई ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, किस डायरेक्शन पे जा रहा है अब ये मुझे नहीं पता. सो दिस इज आवर एंगल ऑफ डिपार्चर फ्रॉम दिस पोल. और इसी तरह से अगर मेरे पास जीरोस होते तो जीरोस के बारे में भी मुझे पता है कि जीरोस अगर कॉम्प्लेक्स हैं तो अल्टीमेटली एट n इज इक्वल टू k इज इक्वल टू इंफिनिटी, अल्टीमेटली क्या होगा, टर्मिनेट होना है रूट लोकस ने इस k इज इक्वल टू इंफिनिटी पे, इस जीरो पे. लेकिन हमें ये नहीं पता कि किस तरफ से आ रहा है लोकस हमारे पास. सो दैट वुड बी एंगल ऑफ अराइवल, और इस केस में यहां पे क्या है, दैट इज एंगल ऑफ डिपार्चर. एनी क्वेश्चंस अबाउट एंगल ऑफ, व्हाट इज एंगल ऑफ अराइवल एंड व्हाट इज एंगल ऑफ डिपार्चर? कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क. इरफान बताएं क्या होता है एंगल ऑफ अराइवल? सर वो मतलब जिस पे एंगल डिफरेंट लोकेशन से अप्रोच कर रहे हो, लाइक लीव ना कर रहे हो सर. क्या ना कर रहे हो? लोकस पे सर तो लीव किस सूरत में करेंगे? पोल से डिपार्चर में जब सर एंगल दूसरी तरफ उसके इनवर्ट टू आउटवर्ड सर जाएंगे. ठीक है. अच्छा, और ये स्टेप जो है ये एग्जिस्ट ओनली, दिस स्टेप विल एग्जिस्ट ओनली व्हेन वी हैव कॉम्प्लेक्स ओपन लूप पोल्स और कॉम्प्लेक्स ओपन लूप जीरोस. ये सिर्फ उस वक्त होगा, बिकॉज अगर मेरे पास रियल एक्सिस पे पोल या जीरो रखा हुआ है, पोल से 90 डिग्री पे वो निकलता है, डिपार्ट करता है, और जो आपके पास जीरो रखा हुआ है तो वो 90 डिग्री पे ही टर्मिनेट होता है. सो दिस rule 6 is only applicable when we have complex open loop poles and complex open loop zeros. And the angle of departure from an open loop complex pole is given as 180 degree minus sum of angles made by the vectors from other open loop poles. So open loop poles से जो angle है plus the sum of angles made by the vectors from open loop zeros. And how do we get this formula? So let's consider, इस फॉर्मूले को देख लेते हैं कि ये कहां से आया है. सो सपोज हमारे पास एक जनरलाइज्ड हम एक्सप्रेशन ले लेते हैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का, एंड दैट इज कि s plus c1 and it is s plus p1, s plus p2, s plus p3. ओके, तो इसके बाद हमारे पास क्या सिचुएशन है, n की वैल्यू क्या है इरफान? उस हमारी प्रैक्टिकल एग्जाम में 0 थी ना n नंगियाल? नंबर ऑफ zeros जो थे सर 0. n is equal number to of 3 zeros, sir. n is equal to 3 and m 1. so these are my open loop poles and this is my open loop zero. ठीक हो गई बात? चलें आगे चलते हैं. ओके, सो सपोज मेरे पास ये -p1 पे, दिस इज माय -p1 एक पोल पड़ा हुआ है, और फिर मेरे पास -p2 दिस -p3 मेरे पास एक जो है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल पेयर्स पड़े हुए हैं, एंड आई हैव अ जीरो एट -0. ठीक है, मैंने इसी ट्रांसफर फंक्शन को जस्ट पोल्स एंड जीरोस जो हैं वो ओपन लूप जीरोस एंड पोल्स जो हैं वो प्लॉट किए हैं. ठीक है, एंड नाउ आई एम इंटरेस्टेड कि मुझे पता चले कि यहाँ से भाई जो एंगल ऑफ डिपार्चर होगा वो एंगल क्या होगा, मेरा इंटरेस्ट ये है. ठीक,
मैं ये देखना चाह रहा हूं. Okay, so for this let's take a test point which is very near to this thing. So suppose मैं एक test point लेता हूं which is very near to this point. ठीक, और फिर उसके बाद what I will be doing, मैं इस टेस्ट पॉइंट पे एंगल क्राइटेरियन जो है वो मैं यूज करूंगा. दैट वुड बी के जी एस टी एंड एच एस टी, और फिर मैं इस एंगल को देखूंगा कि ये जो है ये प्लस माइनस 180 डिग्री है, यानी इंटू 2i इंटू 1, दैट इज द ऑड मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री. इफ दिस इज द केस तो मैं उसके बारे में डिसाइड करूंगा. लेकिन इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि मैं एंगल ऑफ के देखूंगा. चलिए पहले तो इसी चीज को देख लें कि मेरे पास एंगल हैं क्या. ये एंगल क्या है जी? दिस इज, इसको मैं नाम दे देता हूं, दिस इज एस टी, एंगल ऑफ एस टी प्लस 0. ठीक है, दिस इज द एंगल. और इसी तरह से अगर मैं कहूं एक एंगल ये है मेरे पास which will be this thing, ये एक पोल से एंगल है. इसी तरह से एक एंगल जो है and the angle will be, ये एंगल होगा. और इसी तरह से एक पोल जो है, इस पोल से भी एक एंगल जो है, और ये एंगल क्या होगा? ठीक, इन एंगल्स के बारे में कोई एतराज, कोई कंफ्यूजन? If we have to satisfy angle condition on this test point, I will be talking about the angles from all the poles and all the zeros, and I will be deciding about this thing कि ये रूट लोकस पे पॉइंट मेरा है या नहीं है. रूल नंबर 1 यहां से हमने स्टार्ट किया था. एनी कंफ्यूजन्स? नो सर. ओके, सो यानी इस बात का मतलब ये है कि आई विल बी चेकिंग एंगल ऑफ के प्लस एंगल ऑफ एस टी प्लस जी, या Z1 कह देते हैं, माइनस उसके बाद क्योंकि डिनोमिनेटर में था वो, तो इसका मतलब हो गया दैट वुड बी एंगल ऑफ एस टी प्लस P1 प्लस एंगल ऑफ एस टी प्लस P2 एंड प्लस एंगल ऑफ एस टी प्लस P3. तो ये एंगल्स, जीरो वाला एंगल, पोल वाले एंगल, कांस्टेंट का एंगल, इन सबको आप ऐड अप करेंगे. यू विल बी सीइंग कि अगर ये ऑड मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री है तो इन दैट केस यू विल बी डिसाइडिंग कि ये पॉइंट जो है मेरा ये रूट लोकस पे एग्जिस्ट करता है या नहीं करता. फाइन. और इसका एंगल मुझे पता है दैट, क्योंकि पॉजिटिव के की बात हो रही है, तो दैट इज इक्वल टू 0. सो ऑल everything left is this, only these angles, the angles from the zero and angles from the poles. Convinced? यस सर. Okay, अब जरा गौर करिएगा. As we have already said कि ST जो है that is very close to this minus P2. So इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये है कि अगर ये very close है तो इस बात का मतलब ये है कि ये वाला जो एंगल है, this one, यानी ये एंगल और ये एंगल दे ऑलमोस्ट इक्वल. और इसी तरह से बाकी जो भी एंगल चल रहे हैं एस टी तक, वो सारे एंगल जो हैं अगर हम P2 तक लें तो वो एंगल भी हमारे पास सेम है. ठीक है, सो दैट्स द सिचुएशन. सो अल्टीमेटली वी आर एज्यूमिंग कि एस टी जो है दैट इज वेरी क्लोज टू दिस पॉइंट, और ये जो एंगल एस टी तक हमने लिए थे, इनफैक्ट ये एंगल्स जो हैं ये P2 तक भी वही सेम ही रहेंगे. सो अल्टीमेटली वी आर एंडिंग अप कि आपके पास जो थीटा डिपार्चर है या एंगल ऑफ डिपार्चर है वो क्या हो जाएगा? दैट इज 180 डिग्री प्लस जो आपका जीरो एंगल है. अब वो जीरो एंगल क्या हो जाएगा?
अब वो आपके पास P2 से बन गया है, सो दैट इज माइनस P2 प्लस Z1. इनफैक्ट अब इस एंगल की बात हो रही है, which is we are assuming कि ये एंगल जो है, because this ST is very close to this minus P2 pole, so that's why these angle are same. Minus P2 plus P1. What is this? This is this one. यानी we are assuming कि एंगल जो ये चल रहा था ST तक, अब वही एंगल minus P2 तक, both are the same angles. So this one plus यहां से लेके जो ST तक चल रहा था उस एंगल की बात हो रही है. सॉरी, पहले इसकी बात हुई और फिर उसके बाद अब इसकी बात कर लेते हैं P3 वाले की, and that is minus P3 plus P1, and in fact that is what is written here, 180 minus the angles from other poles plus the angles from the zeros, open loop zeros. So that is your theta departure. और अगर मैं बात करना चाहूं कि इस एंगल की डिपार्चर यहां से क्या होगा, angle of departure from P3, and that would be just negative of the theta departure you have already obtained. Why? Because complex conjugate pair हैं, either you subtract it from 360 degree और जो भी एंगल आपको मिला है उसका नेगेटिव आप ले लें, that would be the same thing. Why? Because the root locus जो है that should be the mirror image about the real axis. Any questions about this thing कि angle of departure जो है वो किस तरह से फाइंड किया गया है? सर ये अगर आप 180 वाला पॉइंट ज़रा रिपीट कर दें सर, ये समझ नहीं आई थी. 180 सर इसमें ऐड क्यों हो रहा है? आपकी एंगल कंडीशन क्या है? अच्छा राइट सर, ठीक ठीक है ना? यस सर. And now we have come to the seventh and last step of the root locus construction, which is determining the crossover points. And what is the crossover point? Any idea? क्या होना चाहिए आपके मुताबिक? Well, it is the point or points where the root locus cuts the imaginary axis. ठीक, suppose अगर मेरे पास ये सिचुएशन है, ये मेरे पास imaginary axis रखा हुआ है, this is my real component. So अगर root locus यहाँ से, so ये जो मेरे पास points हैं, यहाँ पे रूट लोकस ने क्रॉस किया है, तो ये मेरे पास क्या है, ये क्रॉस ओवर पॉइंट्स हैं. सो इस केस में दो ब्रांचेस जो हैं वो रूट लोकस की वो क्रॉस कर रही हैं फ्रॉम राइट हाफ प्लेन टू लेफ्ट हाफ प्लेन. देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ऐसा भी हो सकता है कि वो आप इधर से इस तरफ और ऐसे जा रहे हो, ये सॉरी इसको okay. तो ये पॉसिबिलिटी भी मौजूद है. सो इन दैट केस ये फिर आपके पास क्रॉस ओवर पॉइंट्स जो हैं वो, इस केस में आपके पास ये रखे हुए हैं क्रॉस ओवर पॉइंट्स. एनी क्वेश्चंस? नो सर. ओके, व्हाट इज हैपनिंग एट क्रॉस ओवर पॉइंट्स? अगर मुझे पता करना हो कि पर्टिकुलर केस में जिस कंट्रोल सिस्टम को मैं देख रहा हूं और उसका रूट लोकस मैं प्लॉट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो व्हाट आई विल बी सीइंग कि क्रॉस ओवर पॉइंट पे क्या हो रहा है, यानी थ्योरेटिकली क्रॉस ओवर पॉइंट पे क्या सिचुएशन है.
सर रियल पार्ट हमारा एलिमिनेट हो रहा है सर कम्प्लीटली, जो ट्रांसफर फंक्शन का जो था। मैंने कुछ लिखा है, ये नजर आ रहा है तो बताएं ना। 0 सिग्मा इज इक्वल टू 0। ग्रेट, ठीक है। चलें, ये एक चीज हमें क्लियर हो गई कि इस पर्टिकुलर जगह पे सिग्मा इज इक्वल टू 0 है। सो इफ वी substitute s is equal to j omega into our closed loop characteristic equation, we get our crossover points. Agreed? Because इस जगह पे, इस पूरी लाइन पे s is equal to j omega है। सो हमारे पास अगर क्लोज लूप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मौजूद है और उसमें हम रिप्लेस करें s is equal to j omega और सिग्मा 0 कर दें, तो इन दैट केस वी विल बी एट दिस पॉइंट। एग्रीड? Yes, no, maybe. यस सर। सो हमारी एग्जांपल के केस में क्या सिचुएशन है कि g of s h of s and that's equal to k s plus 4 s minus 1 and in fact that's equal to k over s square plus 3s minus 4. Agreed? And ओपन लूप करेक्ट, ये ओपन लूप कैरेक्टरिस्टिक अपना ट्रांसफर फंक्शन हो गया आपका। और अगर आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखना चाहते हैं, दैट इज 1 प्लस के ओवर एस स्क्वायर प्लस 3s माइनस 4 एंड ये आपके पास इक्वेशन आ गई, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। और अगर आप इसको इस तरह से लिखना चाहें, लिख सकते हैं, ठीक। Yes, and sir. finally you can write it in this form. अच्छा, अब क्या करना है? अब क्योंकि मुझे क्रॉसओवर पॉइंट देखना है, तो आई विल बी सब्स्टिट्यूटिंग s इज इक्वल टू j ओमेगा, इस इक्वेशन में रिप्लेस कर दूं, तो व्हाट विल हैपन, आई विल बी गेटिंग दिस थिंग माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस। सर स्क्रीन में लैग आ रहा है सर, ये प्रीवियस स्लाइड तो से दिखा है सर। जी बेटा बोलो। जी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज प्लीज आस्क। नो सर, सर से क्लियर हो गया। Okay, great. So after substituting s is equal to j omega and the characteristic equation, so what we are getting, minus omega square plus 3j omega plus k minus 4 and that's equal to 0। और इसमें real और imaginary portions को अगर हम इकट्ठा कर लें, so minus omega square plus k minus 4, so that's your real portion, plus 3j omega, that's my imaginary portion and that's equal to 0। ठीक है? So suppose for this complex number to be 0, imaginary portion has to be 0 and this portion has to be 0। so suppose हम कहते हैं कि ये this portion imaginary portion is equal to 0, so omega will be equal to 0। if omega is equal to 0, what's happening, k की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास? 4। ठीक। सो और हमने तो k की वैल्यू 4 है और हमने ढूंढना है s की वैल्यू। सो s विल बी इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है? वैसे ओमेगा इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है? क्रॉसओवर पॉइंट कहां पड़ा हुआ है? रियल एक्सिस पे पड़ा, रियल एक्सिस पे पड़ा हुआ है आपका, क्योंकि सिग्मा भी 0 है और ओमेगा भी 0 है, तो आप रियल एक्सिस पे बैठे हुए हैं। ठीक है? सो इफ ओमेगा इज इक्वल टू 0, द क्रॉसओवर पॉइंट जो है वो ओरिजिन पे पड़ा हुआ है। एग्रीड? सी ठीक है। सो हमें ये भी चेक करना है कि k की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, एंड फॉर दिस ओमेगा इज इक्वल टू 0 वी आर गेटिंग k पॉजिटिव।
So we are saying, yeah, S is equal to 0, omega is equal to 0 is a valid crossover. Valid क्यों है? Because K is positive. ठीक हो गई बात? And why we are interested in crossover points? Well, the crossover point is in fact indicating the transition from one half plane to the other half plane. So which is closely related to the stability of the system for different values of K. So this will help us in designing of the systems, allowing us so which value of K will we will be choosing for our system to be stable. Okay, so let's make the root locus for our example. What's that? इस ये रूट लोकस जो है, हम अपनी जो एग्जांपल थी हमारी उसका अगर हम रूट लोकस बनाएं, ओके, so that's my j omega axis और imaginary axis, that's my real axis. मेरे पास एक पोल जो था वो 1 पे पड़ा हुआ था, दूसरा पोल जो है वो -4 पे पड़ा हुआ था, इसी तरह से, and this was at k is equal to 0, k is equal to 0 पे ये ओपन लूप पोल्स थे. उसके बाद क्या होना शुरू हुआ? उसके बाद हमने k की वैल्यू बढ़ना शुरू हुई. k की वैल्यू जब बढ़ना शुरू हुई तो अल्टीमेटली हमने मूव करना शुरू किया राइट और लेफ्ट पे, एंड इन फैक्ट वी हैड वन असिम्प्टोट एट -1.5 पे हमारे पास असिम्प्टोट था. ठीक है, दिस इज -1.5 पे हमारे पास असिम्प्टोट है, +90 और -90 हमारे इस असिम्प्टोट के एंगल्स थे. एंड देन कोइंसिडेंटली इस केस में हमारा ब्रेक इन पॉइंट, ब्रेक अवे पॉइंट जो था वो भी अगर आप देखें तो दैट वाज s is equal to -1.5. This is not the case always, but in this particular case ऐसी सिचुएशन डेवलप हो रही है. सो व्हाट्स हैपनिंग, इसको ब्लू कर देते हैं. सो क्या हो रहा है कि आपके पास ये यहाँ से चलता हुआ आ रहा है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k, और ये यहाँ से चलता हुआ आ रहा है, एंड at k is equal to what? At k is equal to 6.25 इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, बिकॉज ये आपका असिम्प्टोट भी और ये आपका ब्रेकअवे पॉइंट भी है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे k की वैल्यू क्या है? 6.25. ये क्या हो गया? ये ऊपर चला गया है और ये नीचे आ गया, +90 और -90 पे, +∞ और -∞ की तरफ आपके जा रहे हैं. इनफैक्ट k जो है ये यहाँ पे इन्फिनिटी और यहाँ पे भी k जो है वो इन्फिनिटी है. सो ये आपके पास आ गया. ठीक. एंड व्हाट अबाउट क्रॉसओवर पॉइंट? दिस इज योर क्रॉसओवर पॉइंट, और इस क्रॉसओवर पॉइंट पे आपकी k की वैल्यू क्या है? दैट्स इक्वल टू 4. So this is a way you will be representing your root locus. That was a very simple example जिसमें आपने you started with the 2 poles, और 2 poles जो हैं k is equal to 0+ पे start हुए और उन्होंने travel करना शुरू किया, and we know that at k is equal to infinity they will be reaching to infinity along the asymptotes. In this particular case आपके पास asymptote का जो centroid था that was the same as the crossover point. सो वहाँ पे ही आके वो मिले हैं आपके पोल्स, और फिर उसके बाद उन्होंने स्प्लिट किया है इमेजिनरी एक्सिस पे, एंड एट एवरी स्पेसिफिक पॉइंट यू हैव मेंशन्ड व्हाट्स द वैल्यू ऑफ द k. क्वेश्चंस प्लीज. सर ये जो ब्रेक अवे वाला आपने सर बताया था सर, जी सर इसमें हमारे पास सर ब्रेक इन का केस होगा सर, उसमें हमें बता दें थोड़ा सा सर, वो हमें कैसे पता चलेगा सर? जब जीरोस आपके रियल एक्सिस पे रखे होंगे तो इसका मतलब है कि आप ब्रेक इन कर रहे हैं, क्योंकि बाहर से आ रही है चीज़. यहाँ पे अगर रियल एक्सिस पे आपके पास पोल्स रखे हुए हैं तो इस बात का मतलब है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उन्होंने मिलना है,
उस पॉइंट को मैं ब्रेक इन कहूं या ब्रेक अवे कहूं, बिकॉज देखिए यहाँ पे आपके पास ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, तो इस पॉइंट को मुझे क्या कहना चाहिए, ब्रेक इन कहना चाहिए या ब्रेक अवे कहना चाहिए, स्प्लिट अवे करना है ना इन्होंने, अवे अवे ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे जीरोस होते तो फिर तो किसी पोल की तरफ से आ रहा होता ना इन रियल एक्सिस जीरो पे, तो उस वक्त हम इसको हम कहते दैट इज अ ब्रेक इन पॉइंट। जी सर। ठीक है, सर इस पर्टिकुलर केस में हमारा ब्रेक अवे पॉइंट और सेंट्रॉइड जो है एसिम्पटोट का वो सेम है, बट दिस इज नॉट जनरली द केस। सर एक क्वेश्चन है सर। जी बोलेंगे सर एक से ज्यादा ब्रेक अवे ब्रेक इन पॉइंट्स हो सकते हैं सर? क्यों नहीं हो सकता? So the closed loop system is stable. So जरा गौर से देखिए कि मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, the closed loop system is stable for all k greater than 4. Is it true? Is this statement true? सर रिपीट कर दें एक बार काइंडली। ये जो उल्टा ए है इसका मतलब है for all k greater than 4. Agreed? सर k इक्वल टू 6.25 पे सर वो इन्फिनिटी को रीच कर रहे हैं, तो सर तो क्या अनस्टेबल हो जाएगा सिस्टम? नहीं सिस्टम की सर। स्टेबिलिटी के लिए क्या जरूरी होता है? बेटा सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए क्या चीज जरूरत है? सर वो पोल लेफ्ट हैंड में होनी चाहिए, तो सर पोल्स लेफ्ट हाफ में होने चाहिए, तो क्या लेफ्ट हाफ, ये जो रेड लाइन है दिस इज योर इमेजिनरी एक्सिस। सो आपके इस पोल ने जो क्लोज लूप पोल है ये तो हर वक्त जो है आपका रहा, चाहे ये वाले आप एसिम्पटोट लें या ये वाला लें, तो -4 वाला जो पोल है वो तो हर वक्त आपका लेफ्ट हाफ प्लेन में है। लेकिन आपका ये वाला जो पोल है जो कि +1 पे रखा हुआ है, s इज इक्वल टू 1 पे या सिग्मा इज इक्वल टू 1 पे रखा हुआ है, दैट इज इन द राइट हाफ प्लेन। सो इनिशियली एट k इज इक्वल टू 0 प्लस आपका जो क्लोज लूप सिस्टम है दैट इज अनस्टेबल, बट व्हेन इट रीचेज k जो है वो 4 पे रीच करता है तो दैट इज एट द ओरिजिन, और k ग्रेटर देन 4 पे क्या होता है, ये स्विच कर जाता है पोल आपका फ्रॉम राइट हाफ प्लेन टू लेफ्ट हाफ प्लेन, एंड आफ्टर दैट आपका रूट लोकस बता रहा है दैट all the poles, both of the poles will always remain in the left half plane, so the closed loop system is stable for all k greater than 4. जी जनाब, any question, any comments, queries? सर जब k 4 से बढ़ेगा तब भी सर ये पोल इस तरफ लेफ्ट हैंड में नेचुरली k is equal to 4 जो है वो क्रॉस ओवर पॉइंट है, तो लेफ्ट हाफ प्लेन में होना चाहिए, क्योंकि k is equal to 0 पे तो फिर मार्जिनली स्टेबल है ना। फॉर सम इनपुट्स इट वुड बी स्टेबल एंड फॉर सम इनपुट्स that might be unstable, so we call if the poles are on the imaginary axis what we call lecture number 1 or 2, ठीक है, तो that would be the marginally stable system. So what this root locus is giving us, that's giving us a graphical representation to figure out all these things, stability के बारे में, gain parameter के बारे में, तो ये चीजें जो है वो बता रहा है। Suppose what ranges of k providing me a settling time less than 4 seconds. So for this particular case, अगर मैं कहूँ कि मुझे वो ranges बताइए k की which provide me a settling time of less than 4 seconds, suppose using a 2% criteria. So what is सेटलिंग टाइम की क्या होता है? सेटलिंग टाइम इज 4 ओवर 2% क्राइटेरिया पे, इट इज 4 ओवर जीटा ओमेगा एन
एंड हम कह रहे हैं कि दैट शुड बी लेसर देन 4. व्हाट इज zeta omega n? That is greater than 1, and we can call it that minus zeta omega n, that should be lesser than minus 1. What is zeta omega n? That is sigma. So minus sigma should be lesser than minus 1. So इस particular जगह पे हमने देखना है कि k is equal, k की वैल्यू क्या है रूट लोकस पे. So to answer this question, we will go to the closed loop characteristic equation and substitute s is equal to minus 1. So what is my characteristic equation? That is s square plus 3s plus k minus 1 minus 4, that's equal to 0. So जब मैं s is equal to minus 1 place करता हूँ तो what I will be getting, so I will be getting k is equal to 6. So इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब है कि -1 जो लाइन है, सपोज -1 लाइन जो है वो यहाँ पे रखी हुई है, ये ग्रीन लाइन जो है ये सपोज -1 वाली लाइन है. सो एनीथिंग, सो इस लाइन के ये जो ग्रीन मैंने बनाया है, एनीथिंग लेफ्ट ऑफ दिस, इस केस में आपका सेटलिंग टाइम जो है दैट वुड बी लेसर देन 4 seconds. एंड फॉर दैट वी हैव फाउंड आउट कि इस पर्टिकुलर जगह पे इस लाइन पे मेरी k की वैल्यू क्या है? k की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू, k की वैल्यू 6 है, व्हिच वी हैव कैलकुलेटेड फ्रॉम हियर. क्या कहते हैं? Any questions? जी, शहजाद, कासिम, उसामा, ईशा, आयशा सदीका, बीबी हलीमा. No questions? Should we move forward? Yes, sir. जी हाजिक, any question बेटा? No sir, no question. चलें बताएं ब्रेक अवे पॉइंट क्या होता है? सर वो अभी थोड़ी देर पहले वो किया था तो सही तरह रिकॉल नहीं हो रहा. उसामा. जी सर. ब्रेक अवे पॉइंट सर, मतलब सर हम उस पे k की वैल्यू फाइंड करते हैं सर, मतलब -b of s डिवाइडेड बाय a of s करके व्हेन s is equals to s of b. सर अगर k की वैल्यू ग्रेटर होता देन क्या है बेटा? होता क्या है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आपने मुझे और स्टोरी सुना दी. होता क्या है? सर ब्रेक अवे पॉइंट बेसिकली जब दो पोल्स आते हैं तो सर वो एक पॉइंट के ऊपर से ब्रेक कर जाते हैं सर. सर उस पॉइंट को हम ब्रेक अवे पॉइंट कह रहे हैं. इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये रियल एक्सिस पे, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्रेक अवे पॉइंट जो है, अगर दो रियल एक्सिस पोल्स, ओपन लूप पोल्स के दरमियान में अगर कोई जीरो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ओपन लूप जीरो, इन दैट केस अल्टीमेटली उन्होंने स्टार्ट करना है, पोल्स ने अपना रूट जो है वो स्टार्ट करना है, और एक देयर विल बी सम पॉइंट जहाँ पे आके वो मिलेंगे फॉर सम सर्टेन वैल्यू ऑफ के. और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्योंकि वो एक दूसरे को क्रॉस भी नहीं कर सकते, वो वापस भी नहीं जा सकते, तो वहां पे उन्होंने ब्रेक अवे करना. इसी तरह से अगर रियल एक्सिस पे दो ओपन लूप जीरोस पड़े हुए हैं तो अल्टीमेटली किसी पोल से वहां से रूट जो है, रूट लोकस जो है वो आ रहा है और टर्मिनेट होना है,
तो अल्टीमेटली किसी पॉइंट पे आके डिफरेंट पोल से उन्होंने आके उस रियल एक्सिस पे आके मिलना है, तो वो पॉइंट जो है वो ब्रेक इन होगा। और अगर तो पोल्स की सिचुएशन में रियल एक्सिस पे पड़े हुए हैं तो वो आपका ब्रेक अवे पॉइंट होगा। ठीक है, ईशा आर यू सिटिंग बेटा? सर जी बोले। सर ऐसे हो सकता है कि सर हमारे पास सिर्फ हो ही जीरो सर सिस्टम है, तो सर मतलब तो फिर मतलब पोल हो ही ना। तो फिर इन्फिनिटी से आएंगे, तो फिर इन्फिनिटी से आपका लोकस जो है वो आएगा और जीरो पे टर्मिनेट हो रहा हो। जी सर। ठीक है ना, जब आपके पास सिर्फ m जीरोस पड़े हुए हैं, दैट केस रूट लोकस ने तो जीरोस पे टर्मिनेट करना है। सो इस बात का मतलब ये है कि फिर इन्फिनिटी से रूट लोकस स्टार्ट करेगा और वो आपके जीरो पे आके एंड करेगा और k इज इक्वल टू इन्फिनिटी। जिस तरह से हमने दो पोल वाली एग्जांपल देखी है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि आपके पास जीरो कोई नहीं था, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि आपका for different values of k starting from k is equal to 0 for different values of k आपका रूट जो है वो आपको बता रहा है कि at k is equal to 6.25 we are splitting, we are breaking away, and at k is equal to infinity we are approaching to infinity, and at any value of k after 6.25 हमारे पास poles जो हैं वो complex conjugate pair है। So that condition is met always कि आपके पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर होगा पोल्स का, क्लोज लूप पोल्स का, which will be guaranteeing us कि we are having real coefficients in our differential equation. जी सर। बीबी हलीमा, आयशा सदीका, ईशा, okay, I'm stopping it here so that you should be able to digest, but I want कि आप इन तमाम लेक्चर्स को, पिछले लेक्चर्स को भी और इस लेक्चर को भी you closely monitor this और थोड़ा सा इसको रिवाइज करें so that के फिर जब हम आगे चलें। जी जी बोलें सर। सर आप हमें सर कोई दो ड्रिल प्रॉब्लम्स कराएंगे सर, मतलब जिसमें जी जी सारा कर, पहले कभी नहीं कराएं ना सर। तो ये क्वेश्चन बनता तो नहीं है।